Kerala? Thiruvananthapuram. Very good. What is the capital of Sikkim? Gangtok. What is the capital of Bihar? Sikkim Gangtok. Yes. What is the capital of Bihar? Patna. What is the capital of Gujarat? Gandhinagar. Gandhinagar. What is the capital of Goa? Pandiji. What is the हेलो एंड नमस्ते, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का मॉमीलॉजी विथ रेनू में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मैंने अपनी बेटी जो कि 3 साल 4 महीने की है, मैंने उसके साथ क्या क्या प्रैक्टिसेस किए, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ किए टू टीच हर अबाउट आवर कंट्री। मैंने अपने लास्ट वीडियो को जो कि डेडिकेटेड था हाउ टू होम स्कूल अ टॉडलर और हाउ टू होम स्कूल अ 3 to 4 years ओल्ड किड इन लॉकडाउन और इन पैंडमिक, ये पर्टिकुलर वीडियो उसी सीरीज़ का कंटिन्यूशन में बन रहा है। और इसके अलावा भी आप आगे आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे उस सीरीज़ का कितना कंटिन्यूशन वीडियोस में बनाती हूँ। आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, सो दैट आपको समझ में आएगा कि मेरा वीडियो किस बारे में है और आगे हम लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। दिस वीडियो इज़ बेसिकली डेडिकेटेड टू आवर कंट्री इंडिया। हम लोग इसमें सीखेंगे कि बच्चे को हम लोग किस तरह से जनरल अवेयरनेस अबाउट आवर कंट्री क्रिएट कर सकते हैं, जनरल नॉलेज की बातें बच्चों को सिखा सकते हैं अबाउट आवर कंट्री। और ये बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको आगे पता चले कि क्यों मैं ये कह रही हूँ कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। बिकॉज आप देखेंगे इस वीडियो में राजवी कैसे इन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करके आज कितनी कन्वर्सेंट है अबाउट द नॉलेज ऑफ इंडिया, जो एक 3 से 4 साल के बच्चे को मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है उतना भी आइडिया होना। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से इस वीडियो को फुल देखें और साथ में लाइक दें और कमेंट करें ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाऊं। अभी जो आप आगे देखेंगे ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। राजू, यू हैव सीन इंडियन फ्लैग? Yeah. हाउ मेनी कलर्स इंडियन फ्लैग हैज? Saffron, white, green. एंड व्हाट इज द चक्रा इन द मिडल? व्हाट इज दैट चक्रा कॉल्ड? Also chakra. Very good. Acha, can I go that side? You are comfortable if I go there? Yeah. Yeah, Raju, you are ready? Yeah. Acha, tell me, what is the national animal of India? Tiger. Very good. What is the national bird of India? Peacock. Which is the national fruit of India? Mango. Which is the national sport of India? Hockey. Who is known as the father of nation? Mahatma Gandhi. Very good. Acha, can you tell me who is known as the father of Indian Constitution? I'll help you. Dr. Bhimrao Ambedkar. Very good. Now, can you tell me which is the national tree of India? Banyan. Which is the national river of India? Ganges. Very good. What is the national currency of India? Rupee. Very good. Who is the present Prime Minister of India? Shri Narendra Modi. The present President of India? Shri Ramnath Kovind. Ramnath Kovind. Very good. Acha. Who is the first Prime Minister of India? I'll help you. Pandit? Jawaharlal Nehru. Very good. Who is the first President of India? Dr. Rajendra Prasad. What is our national anthem? Jana Gana Mana. Okay, you know a lot. Who has written Jana Gana Mana? Shri Navindranath Tagore. Shri Rabindranath? Nath Tagore. Very good. Which is our national song? Vande Mataram. Very Vande Who has Mataram. written Vande Mataram? Bankim Chattopadhyay. Bankim Chandra Chattopadhyay. How many states India has? 28. Very good. And how many union territories India has? How many union territories India has? 8. 8. Very good. Acha, I'll ask you few capitals. You have to tell me. Rajvi? Since you said 28 states are there in our country, I'll ask you few capitals. You have to answer me. I'll tell the state's name. You have to tell me the capital. Rajvi, what is the capital of Jharkhand? Ranchi. Very good. What is the capital of Kerala? What is the capital of Kerala? Thiruvananthapuram. Very good. What is the capital of Sikkim? Gangtok. What is the capital of Bihar? Sikkim Gangtok. Yes. What is the capital of Bihar? Patna. What is the capital of Gujarat? Gandhinagar. Gandhinagar. What is the capital of Goa? Pandiji. What is the capital of Assam? Dispur. Very good. Okay. Tell me, what is the capital of Maharashtra? Mumbai. What is the capital of Karnataka? Bangalore. तो जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में राजवी ने बहुत ही कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कुछ जीके क्वेश्चंस का रिलेटेड टू आवर कंट्री। आगे वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने किस तरह से राजवी को ये बहुत ही सिंपली ये चीज़ सिखाई है। चलिए हम शुरू करते हैं। मैं आपको पहले बताऊंगी मैंने क्या क्या टिप्स यूज़ किया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी,
अपने बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स मत कीजिएगा, हमें उन्हें फन वे में सिखाना है। कंपटीशन में बिल्कुल मत पढ़ाइएगा कि दूसरा बच्चा बोल रहा है तो मेरे बच्चे को भी बोलना पड़ेगा, इस तरह से बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर वो सीखना भी चाहेगा तो उसका वो चीज़ खत्म हो जाएगा, वो सीखना नहीं चाहेगा। दिस वॉज माई रिक्वेस्ट। और आप इस समय स्लोली एंड स्टेडली आगे बढ़ेंगे, बिकॉज दिस इज़ नॉट एक्सट्रीमली रिलेटेड टू आवर सिलेबस। ये है कि आप बच्चों को एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं जो कि फ्यूचर डेवलपमेंट में उनके काम आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला मेरा तरीका था पिक्चर बुक्स, जो बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, सबके घर में आता है। तो आप बच्चों के लिए पिक्चर बुक्स ऐसे भी खरीदते हैं, तो एक पिक्चर बुक आप खरीद लीजिए अबाउट आवर कंट्री। आप उसके थ्रू बच्चे को बहुत आराम से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसमें कहीं महात्मा गांधी का फोटो होगा, कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू का फोटो होगा, कहीं एक फ्लावर का फोटो होगा विच इज़ लोटस, कहीं पिकॉक का फोटो होगा। तो ये आप बच्चों को अगर कंटिन्यूस दिखाते रहेंगे और साथ में आराम से उन्हें बताएंगे, देखो बेटा दिस इज़ पिकॉक, ये हमारे कंट्री का नाम इंडिया है और हमारे कंट्री का नेशनल बर्ड है। तो इस तरह से अगर आप हमेशा हर दिन 2 दिन 3 दिन पे वो बुक निकाल के बोलते रहेंगे तो बच्चे के दिमाग में वो बैठ जाता है। भले ही बच्चा आपको उस समय रिवर्ट बैक नहीं करेगा, मगर बच्चे के दिमाग में ये चीज़ जा रहा है, वो सुन रहा है, और आप देखिएगा एक दिन अचानक जब आप उससे पूछोगे तो ही विल रिप्लाई। सो दैट इज़ व्हाट वी रिक्वायर। सेकेंड पॉइंट है सेलिब्रेट नेशनल हॉलीडेज, लाइक 26 जनवरी जब होता है, 15 अगस्त होता है, या गांधी जयंती होती है, तो इन सब को आप जल्द सेलिब्रेट कीजिए। अभी 26 जनवरी गया है, तो उस दिन हमने राजवीर को थोड़ा जल्दी उठा दिया था, क्योंकि टीवी में परेड होता है, झांकी आती है और प्रेसिडेंट उस दिन फ्लैग होस्टिंग करते हैं। तो वो मैं प्रोसेस सारा उसको दिखाना चाहती थी। वो इतनी समझदार तो हो ही गई है कि वो टीवी में अगर फ्लैग होस्टिंग हो रहा है तो बोलती है फ्लैग है, इंडिया फ्लैग है, या अगर एविएशन का शो हो रहा है तो वो बोलती एरोप्लेन जा रहा है। तो इसलिए मैंने उसे इस बार पहली बार 26 जनवरी में उसे टीवी के सामने बिठाया और उसे परेड दिखाया, डिफरेंट स्टेट्स का झांकी दिखाया। ये भी एक तरीका है बच्चों को 26 जनवरी 15 अगस्त में बच्चों को टीवी में बैठा के दिखाना, या उनको गाना सुनाना, या उनसे बात करना कि क्यों आज छुट्टी है, क्यों आज हम लोग इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्यों हमें आज जल्दी सुबह उठ के फ्लैग होस्टिंग देखना चाहिए। अगर आप फिजिकली अवेलेबल नहीं हैं, जैसा कि अभी समय चल रहा है, तो आप टीवी पे देखिए, सो दैट बच्चे भी उस चीज़ का इंपॉर्टेंस समझें और उससे रिलेटेड फन फैक्ट्स भी आप उनको बता पाएँ। थर्ड वुड बी माई फेवरेट, इट्स आर्ट एंड क्राफ्ट। सो मैं यूजुअली जब भी मुझे राजवी को कुछ समझाना पड़ता है और जो मैं समझा सकती हूँ थ्रू आर्ट एंड क्राफ्ट, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कोई क्राफ्ट का सहारा लूँ जिससे मैं उसे बता सकूँ। अभी मैं एक क्राफ्ट लेके बैठी हूँ, ये है फ्लैग, जो इस बार हमने 26 जनवरी में बनाया। तो ये डेकोरेशन का पेपर जो आता है, क्रेप पेपर, वो हमारे पास कुछ बचा हुआ था, तो बस मैंने उसे दे दिया, लाइन्स ड्रॉ कर दिया और उसने लाइन्स के अंदर इसको चिपका दिया और इट बिकेम अ फ्लैग। तो अब मुझे उससे आसान हुआ समझाने में कि फ्लैग क्या है, फ्लैग में कितने कलर्स हैं, ये मिडिल में जो चक्र है वो क्या होता है, हम लोग कब कब फ्लैग होस्ट करते हैं। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डूइंग दिस एक्टिविटी, कम्युनिकेशन के थ्रू मैं उसे बहुत सारा चीज़ बताती हूँ, वो सुनती है। उस समय वो रिप्लाई नहीं करती है, मगर जब मैं उसे 2-3 दिन बाद फिर पूछती हूँ कि अच्छा बताओ फ्लैग में कौन सा कलर था सबसे ऊपर, देन शी सेज ऑरेंज और सैफरन, वॉटएवर उसके दिमाग में आता है। या मैं उससे पूछूंगी कितने कलर से फ्लैग में, हमने कौन कौन सा कलर से फ्लैग बनाया था, तो वो कहती है 3 कलर्स। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन हेल्प करता है बच्चों को उस चीज़ को मगअप करने में, उस चीज़ को दिमाग में बैठाने में, और सही समय आने पे उसका रिप्लाई बैक भी करने में। जैसे कि गांधी जयंती आया तो फिर हमने एक बैंगल लिया, उसके चारों तरफ हमने धागा बांधा। तो भाई गांधी जी चरखा यूज़ करते थे क्योंकि खादी वस्त्र बनाते थे। कि जब आप क्राफ्ट बना रहे हैं तो बच्चे के साथ इन्वॉल्व होकर आप उसको कुछ नॉलेज भी शेयर कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को अगर आप आसान ढंग से समझाना चाहते हैं तो क्राफ्ट्स का सहारा लीजिए। क्राफ्ट्स बहुत ही आसान होता है बच्चों को समझने में, उनका टाइम भी इसमें किल होता है, आपका भी टाइम आराम से उनके साथ व्यतीत होता है, वो कुछ नया सीखते भी हैं, आप भी कुछ नया सीखते हैं, और एक कम्युनिकेशन बिल्डअप होता है मम्मी और बच्चे में, जो कि बहुत ही फ्रूटफुल होता है। फोर्थ पॉइंट वुड बी लर्न फ्रॉम योर इन्वायरमेंट। अगर आप कभी बैंक गए हैं बच्चे को लेके, तो वहाँ आप अक्सर देखेंगे महात्मा गांधी का फोटो होता है, तो वहाँ से भी आप कनेक्ट करा सकते हैं। देखो बेटा ये महात्मा गांधी का फोटो है, हमने इसे अपने बुक्स में भी देखा था। तो बच्चे रिकॉल करते हैं, कनेक्ट करते हैं और समझते हैं कि येस इट इज़ अ थिंग ऑफ इम्पॉर्टेंस जो मुझे आना चाहिए, और फिर वो रिप्लाई बैक करते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में न्यूज़पेपर आता है तो न्यूज़पेपर में आप देखेंगे बहुत सारे चीज़ों का फोटो होता है, वो भी आप सिखा सकते हैं। आपको सिर्फ स्मार्टली मौका ढूंढना है कब आप बच्चों को कुछ सिखा पाए। तो धीरे धीरे अगर आप कंटिन्यूस हैमरिंग करते रहेंगे, आज न्यूज़पेपर से किया, कल किसी पोस्टर से किया, परसों आप जब बाहर गए तो वहाँ दिखाया, फिर आपने पिक्चर बुक से दिखा दिया, किसी क्राफ्ट से दिखा दिया, तो एक कंटिन्यूस हैमरिंग जो होता है ना, ये बच्चों को लर्न करने में बहुत हेल्प करता है।
आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। बस मुझे एक मोबाइल खरीदनी है। अब अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो FM में सुन रही हूँ एक पर्टिकुलर मोबाइल का ऐड। अगर मैं घर पे हूँ पेपर में उसी पर्टिकुलर मोबाइल को देख रही हूँ। अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो होर्डिंग भी उसी पर्टिकुलर मोबाइल का देख रही हूँ। तो जब अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मान लीजिए 10 डेज़ या 1 मंथ या 2 मंथ्स बाद अचानक मुझे मोबाइल की ज़रूरत पड़ी, तो सबसे पहले मैं उस ब्रांड को रिकॉल करूँगी जिसका रिपीटेशन कंटिन्यूस रहा है मेरे साथ। ये आप अपने लाइफ में भी आप देखेंगे। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आपके साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये नॉर्मली सभी के साथ होता है कि आप तुरंत उस ब्रांड को रिकॉल करते हैं। दैट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूस हैमरिंग एंड कंटिन्यूस रिपीटेशन। यहाँ कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि आपको होर्डिंग देखना ही है या आपके न्यूज़पेपर में वो पर्टिकुलर ऐड देखना ही है, पर वो जब सामने आ रहा है, आप सुन रहे हो डिफरेंट मोड्स के थ्रू, तो आप ऑटोमेटिकली आप उस चीज़ को अंदर ले लेते हो और आप फिर वही बोलते हो। आई होप आप मेरे इस पॉइंट से एग्री करेंगे। जो भी एग्री करते हैं प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। व्हेन इट कम्स टू आवर कंट्री इंडिया, यहाँ पर हमें इंडिया के स्टेट्स और इंडिया के यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने इसे कैसे सिखाया? सो इट बिकम्स अ टफ पार्ट बिकॉज 28 स्टेट्स है, 8 यूनियन टेरिटरीज़ है, थोड़ा बड़ा हो जाता है बच्चों को याद करने में। तो मैं 5 एट अ टाइम लेती थी। 5 कोई भी स्टेट्स ले लिया, मैंने उसका रूटीन बना दिया वैसा। 5 स्टेट्स को मैं लगातार 1 वीक 10 डेज रिपीट कराते रहूँगी। रिपीट कैसे कराऊंगी? अगर हम लोग इफ़ सपोज आई एम गिविंग अ बात टू हर, तो मैं उस समय खेल खेल में पूछूंगी। अगर हम लोग बाहर स्ट्रॉल पे गए हैं या नॉर्मल वॉक करने गए या किसी शॉप में गए हैं तो मैं उससे खेल खेल में पूछूंगी। तो दीज आर सिंपल ट्रिक्स जो आप अपना सकते हैं बच्चों को कोई चीज़ सिखाने में। आप फर्न लर्न पॉलिसी को अपना के अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। सब चीज़ कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होता और नॉर्मली ये हर बच्चे में ये टैलेंट होता है। ओनली एज अ मदर और एज अ फादर वी नीड टू एक्सप्लोर दिस कि हम इसको किस तरह से सिखा सकते हैं। हर बच्चे का सीखने का पेस अलग होता है, हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है, पर वही चीज़ तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसे किस चीज़ में इंटरेस्ट है जहाँ पर हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट करती हूँ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये मुझे बहुत मोटिवेशन देता है और इसी मोटिवेशन के साथ मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो आगे लाऊंगी ताकि हमारी लाइफ और भी अच्छी हो। ये मेरे कुछ अपने आइडियाज़ थे जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। आपके पास भी डेफिनेटली कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज़ ज़रूर होंगे, तो वो मैं चाहूँगी आप मुझसे शेयर करें। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा आपकी आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने में। और इस वीडियो का एक खास बात है, जो भी इसे सब्सक्राइब करेगा उसको मैं शाउट आउट दूंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में रैंडमली किसी एक सब्सक्राइबर को सेलेक्ट करूंगी और उनका नाम मैं अपने वीडियो में लूँगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चांस का फ़ायदा उठाएं, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं उनका नाम अपने नेक्स्ट वीडियो पे लूँ। एंड आई विल पब्लिकली थैंक हिम और हर फॉर सब्सक्राइबिंग मी।